Hmm. So today we will try to decode the syllabus of Civil Services exam. PSI are optional, and then we will move on to a new topic. I have deliberately chosen a very interesting topic, Cold War, to start with, because generally I start with topic like Western political thought. But of late, when I started new batch, so I found out that it is better to start with an easy topic and develop the interest of a student gradually, rather than starting with any one topic that is technical in nature. That is deliberately for today's topic, I have chosen a topic like Cold War, which is easy to understand. In your school days also, you must have read about the topic. So deliberately this topic has been chosen by me because the purpose is to build your interest for longer duration, so that over the period of time gradually your interest will develop in the subject, and you should not remain frightened about the subject. You should remain very confident about the subject throughout the process. So a couple of things which I need to mention. So in today's class, I will not be formally starting with the topic, but I will discuss with you about all the entire syllabus. I will discuss with you about previous year's question paper, and I will also discuss with you about the way you should move forward in PSI or optional, because there is a way to move forward in an optional paper. So we will discuss about all those things. Thank you, Harsh. Thank you, Bete. Thank you. And we will try to remain relevant as much as we can from examination point of view. So remember, this particular, any optional rather, it must remain exam centric. So I will try to remain as much exam centric as much I can, because the purpose is not to make you a knowledgeable person of PSI or optional. The purpose is to make you highly competitive in the arena of exam. मेरा पर्पस आपको बहुत नॉलेजेबल इंसान बनाने का नहीं है, मेरा पर्पस है आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करवाने का. तो मैं जहां तक भी पॉसिबल हो पाएगा वहां तक मैं ये कोशिश करूंगा कि हम एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम करें. हम बहुत रैंडमली काम ना करें. हमारा पूरा का पूरा जो अप्रोच होना चाहिए वो बड़ा एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए. एकदम एग्जाम से लेकर रेलेवेंट चीजें हम लोग पढ़ें, ठीक है. और हमारी ये भी कोशिश होगी कि थैंक यू बेटे अनन्या, थैंक यू उत्कर्ष, अनन्या, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग PSI और ऑप्शनल. मेरी पूरी कोशिश इस बात को रहेगी कि हम लोग अननेसेसरीली फालतू की चीजें ना पढ़े और न ही हम लोग एग्जाम की रिक्वायरमेंट से बहुत दूर जाएं, क्योंकि मैं सीरियसली इस चीज में यकीन करता हूं that all of us have come here congregated at a place to clear the exam and not to become a knowledgeable person. So the purpose is to convey you the message, the purpose is to convey you the subject in such a manner that you can perform well in exam. And always remember, there is a difference between a remaining knowledgeable person and clearing the exam. These two are different things, and these two things should not be mixed with each others. Remaining a knowledgeable person and clearing the exam, these are two different things altogether. इन दोनों चीजों को मैच करवाने की जरूरत नहीं है. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. हो सकता है यू मे बी द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन बट यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात विच आई हैव ऑब्जर्व्ड, अभी आज मैं आपसे पहले टाइटन बैच की क्लास ले रहा था अभी जस्ट. तो टाइटन बैच में मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि वन ऑफ माय स्टूडेंट क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम, ही गॉट टू 94 रैंक in 2023 civil services exam. So it was on his recommendation that he had joined PSI or optional batch. I'm forgetting the name of my student. So the purpose is that sometimes I may not be knowing about the person in whose journey I have contributed. The purpose is to remain exam centric. If somebody has recommended someone's name
इट मीन्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिमेनिंग एग्जाम सेंट्रिक। तो इसलिए हर समय हमें एग्जाम सेंट्रिक रहना है। जैसे आप अगर कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं तो आपको कोल्ड वॉर पर रिसर्च नहीं करना है। कोल्ड वॉर पर रिसर्च होती है, पीएचडी करते हैं लोग, आपको पीएचडी नहीं करना है। आपको कोल्ड वॉर में उतना जानना है जितने से आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस बात खत्म हो गई। आपको जब मैं आईआर की थियोरी करवाऊंगा, रियलिज्म करवाऊंगा, आइडियलिज्म करवाऊंगा, तो आपको केवल इतना जानना है रियलिज्म और आइडियलिज्म में कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट कि रियलिज्म में आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया, मर्शिमर ने ऐसा क्यों बोला, मर्शिमर ने वैसा क्यों बोला। आपको ये सब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केनेथ वॉल्ट्स ने ऐसा क्यों कहा, या किसी भी स्कॉलर ने, हेडली बुल ने ऐसा क्यों कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हेडली बुल ने ऐसा कह दिया है, खत्म हो गई बात, उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी टॉपिक में हमारा अप्रोच विल नॉट बी रिसर्च ओरिएंटेड, हमारा अप्रोच विल रिमेन एग्जाम ओरिएंटेड। आप में से जिन बच्चों ने मेरे से जीएस की क्लास की होगी उन बच्चों को यह बात पता होगा कि मैं सब्जेक्ट को बहुत ही नो नॉनसेंसिकल अप्रोच के साथ देखता हूं। मैं सब्जेक्ट में विद्वान बनाने के लिए किसी को नहीं आता। मैं विद्वान हूं ना मैं विद्वान बना सकता हूं। हाँ, मैं आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस जरूर अच्छे से करवा सकता हूं, मैं आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन जरूर अच्छे से करवा सकता हूं। तो आपका पर्पस होना चाहिए कि आप एग्जाम के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पढ़ाई करें, न कि अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाई करें। स्टूडेंट जो एक दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम के प्रिपरेशन में, वो ये गलती करता है कि वो हमेशा मन को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाई करता है। आपको मन को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं पढ़ाई करनी है। आपको पढ़ाई करनी है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं क्या उससे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर उससे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो बेकार पढ़ रहे हैं। एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो कई बारी जो लोग एकेडमिक वाले होते हैं, एकेडमिक से जो लोग आते हैं, वो इस बात से मेरे डिफर करते हैं कि तुम तो स्टूडेंट को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हो उनके अप्रोच को। तो मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ, कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो वो हमेशा ये बातें कहते हैं कि तुम तो स्टूडेंट की ऑटोनमस थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मैंने उनसे कहा कि स्टूडेंट को अगर ऑटोनमस थिंकिंग डेवलप करना है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद डेवलप करना है। सब्जेक्ट में एग्जाम क्लियर करने के लिए अननेसेसरली ऑटोनमस थिंकिंग नहीं डेवलप करना है। उसके लिए यू नीड टू रिमेन very exam focused, exam centric. You need to stick to the syllabus and you need to stick to the previous year's question paper. तो इसलिए अपने अप्रोच को एकदम अपने दिमाग में गांठ बांध लेंगे। कोई फालतू की चीज नहीं पढ़नी है। जो भी पढ़ना है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होना चाहिए। अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होना है तो ही उसको पढ़ना है, अदरवाइज उसको नहीं पढ़ना है। सिंपल। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस। और ये टेलीग्राम चैनल है अपना ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल ये आपको पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा आफ्टर क्लास। तो यहां से आप अपने टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, अभी मैं आपके सारे क्वेश्चन लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन होगा ये ओरिएंटेशन सेशन होगा। जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट कोल्ड वॉर टॉपिक। आज कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जीएस और पीएसआईआर ऑप्शनल में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन क्या दोनों का अप्रोच हमारा डिफरेंट होगा? हाँ, दोनों का अप्रोच हमारा डिफरेंट होना चाहिए। उसी चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एंड में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कोल्ड वॉर टॉपिक से। चलिए, तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस।
और सिलेबस में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. In PSI or optional, we have 4 parts in 2 papers. So we have 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 and paper 2. Paper 1, again we have 2 parts, section A and section B. Section A and section B. Paper 2, again 2 parts, section A and section B. A and section B. Section A, topic, it consists of political theory, meaning and approaches. Section B, it consists of Indian government and politics. Again, paper 2, section A, it consists of international relations. And section B, it consists of India's foreign policy. Now let us discuss about, and for our discussion purpose, we will call it 1A, 1B, 2A and 2B. So let us discuss about 1A. Paper 1, section A. What you need to do is that you download the syllabus of PSIR. I think PSIR syllabus is also given on your app. ऐप पर भी दिया हुआ है, अदरवाइज यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के और एक बारी PSIR के पूरे क्वेश्चन पेपर को, सॉरी, सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे. सिलेबस को डाउनलोड करने के पीछे का क्या रीजन है? आई कैन अश्योर यू वन थिंग, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको सिलेबस का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा के और दूसरा टॉपिक ना पढ़ाऊं. आजकल एग्जाम में एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है. आज के क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे. हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे. सिलेबस, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू एंड ट्रेंड एनालिसिस, कि क्या नया ट्रेंड डेवलप हुआ है. जैसे पीएसआईआर ऑप्शनल की अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो एक ही टॉपिक पूरे साल भर पढ़ता है. 90% जो पीएसआईआर का स्टूडेंट होता है वो क्या टॉपिक पढ़ता है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेगा दिन रात. आप अगर किसी भी दिल्ली करोल बाग में अगर कोई बच्चा पढ़ता हो और पीएसआईआर उसका ऑप्शनल हो, आप उससे बातें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पीएसआईआर के ऑप्शनल में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अलावा और कुछ है ही नहीं. इससे बड़ा मिसनोबर और इससे बड़ा मिथ नहीं है. लास्ट 5 इयर्स के अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का ट्रेंड देखेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर लेंगे दैट दे हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. पूछना बंद ही कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस बच्चे का पीएसआई और ऑप्शनल है, अपना 50% टाइम तो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने में खराब कर देता है. सिलेबस के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको वो पढ़ता नहीं है पेपर में, उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आता है. तो सिलेबस पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है? इफ पॉसिबल ट्राई टू मेमोराइज सिलेबस. सिलेबस का ईच एंड एवरी वर्ड यू शुड रिमेंबर. क्यों सिलेबस का ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि सिलेबस के अगर आप ईच एंड एवरी वर्ड को याद करेंगे ना, तो ही आपको यह समझ में आएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिकली वो किन एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अगर सिलेबस के ईच एंड एवरी वर्ड को आपने बार बार पढ़ा हुआ है तो आप एक बात रियलाइज करेंगे कि जो ट्रेडिशनली सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो हॉट एरियाज होते थे, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब
पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल में बहुत हॉट एरियाज माने जाते थे, हर कोई इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करता था. दे हैव स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दोज सो कॉल्ड हॉट एरियाज. नाउ दे हैव वेंचर्ड इनटू कोल्ड एरियाज which nobody likes to study, like political theory, meaning and approaches. Nobody likes to study political theory, meaning and approaches, decline of political theory, resurgence of political theory, traits of behavioralism. Nobody likes to study contemporary global concerns like terrorism, gender justice, environment. Nobody likes to study comparative politics. Nobody likes to study. Each and every student of PSIR, almost 90% student, those who haven't gone through the syllabus, they will keep on studying only Western political thought, as if only one thing is they are going to ask, and that is Western political thought. That is why they have stopped asking question. If you will look at paper 1 section A, nowadays in the last 5-7 years, they do not ask many questions from Western political thought. They ask 1 or 2 questions maybe from Western political thought. And in optional paper, since you have so many options that you can easily even skip out those questions. So I'm not saying that you should also be skipping Western political thought. You must study Western political thought. But remember that each and every topic of syllabus is important. That is why I told you that you just go and download the syllabus and just keep on reading every day. So within 3-4 days, you will be able to memorize the whole syllabus. Remembering syllabus, memorizing syllabus is not a very challenging task, neither for GS nor for optional. You can easily memorize syllabus. So what you need to do is, you just go and memorize syllabus. When you will memorize syllabus, you will realize that, okay, so in a small topic like political theory, meaning and approaches, which is a very small topic, even in classroom, I will finish the whole topic in 4-5 days. You will realize that every year they are asking 3-4 questions from one topic. You will realize that every year they are asking a couple of questions from at least 3-4 questions from contemporary global concern. There are 6 topics in contemporary global concern topic, like gender justice, human rights, democracy, terrorism, nuclear proliferation, and environment. These are the 6 topics given there. You will be amazed to know that every year they ask 3-4 questions from these 6 topics. Traditional areas like theories of international relations in paper 2A. Now they do not ask many questions. They ask only 2-3 questions. So you should study entire syllabus rather than you should be focusing too much. You should be investing too much energy on a single topic. Try to cover entire syllabus. Entire syllabus becomes important, not this topic or that topic. Entire syllabus becomes important. So try to cover each and every topic of the syllabus. Remember this fact. Read syllabus, memorize syllabus. Download syllabus and memorize it. Each and every topic of syllabus is important. That is why you should not be studying in too much of detail any single topic. Student गलती क्या करता है, वो एक ही टॉपिक को खूब डिटेल में पढ़ता है, बाकी टॉपिक को छोड़ देता है. डोंट डू दैट. हर टॉपिक को एवरेज लेवल पे करो. अगर तुम किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा डेप्थ एक्वायर करोगे ना, तो बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे तुम्हारे. इस छोटी सी बात को स्टूडेंट समझने को तैयार नहीं है. मैं चीख चीख के अपने हर बैच में बोलता हूं कि मान लिया तुमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दिन रात पढ़ा, उससे क्या हो जाएगा. अभी मैंने एक बैच लेना शुरू किया था अगस्त महीने में. उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कुछ बच्चों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया. मेरी क्लास पढ़ते थे, फिर कंपाइलेशन पढ़ते थे, उसके बाद जाकर के किताब पढ़ते थे, उसके बाद जाकर के वो एक बुक दूसरा बुक पढ़ते थे. मतलब मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी खत्म हो गया, उनका प्लेटो अब तक खत्म नहीं हो पाया. जब क्वेश्चन आया तब भी मैं उनको ये बात सजेस्ट करता था कि बेटे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में इतना पढ़ने का देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट. क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसे. और अल्टीमेटली जब पेपर आया तो वही हुआ, खुदा पहाड़ निकली चूहिया. 2 क्वेश्चन आए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से.
भी ऐसे क्वेश्चन थे कि जो सीधे सीधे हेडिंग दे करके क्लास में बच्चों को करवा दिया था मैंने, हेडिंग दे करके वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी एरियाज से जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो छूट जाएगा तुम्हारा। प्लेटो हो सकता है प्लेटो से कभी क्वेश्चन ना आए, तुम जब तक पेपर दोगे तब तक नहीं आएगा क्वेश्चन। लास्ट 6-7 ईयर्स में नहीं आया क्वेश्चन। उनको भी ये बात पता है कि हर कोई पढ़ता है प्लेटो, हर कोई पढ़ता है अरिस्टोटल। तो लास्ट 6-7 ईयर्स में एक क्वेश्चन इस बार उन्होंने पूछा हुआ है। लास्ट 20 ईयर्स के पेपर को देखोगे तो हार्डली 6-7 टाइम्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एक थिंकर से। इसलिए ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, क्लासरूम में आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस विल बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम इटसेल्फ। So pay adequate attention to what I teach in classroom. जितना पॉसिबल है उतना adequate attention पे करने की जरूरत है क्लासरूम में when I discuss things on the board, because many of you have been my GS student. Whatever is important I keep on writing on the board and then explaining things to you. So apart from the notes which you will be getting, you should focus, you should give utmost focus to, you should pay utmost focus and attention to the things which I'm discussing here on the board. And I will cover each and every topic of the syllabus. So ultimately you need to write your answer in 150 words and 200 words or 250 words. उसमें इतना नहीं जानना है कि 150 वर्ड का आंसर लिखने के लिए तुमने रिसर्च कर दिया। मुखर्जी नगर में एक लेडी ने, जो मेरे PSIR के स्टूडेंट है, उस लेडी ने PSIR पे 3-4 सोर्सेस से पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ाना शुरू किया तो वो प्लेटो पढ़ना शुरू किया 3-4 सोर्सेस से। 3-4 सोर्सेस से तुम प्लेटो पढ़ोगे कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम एक एक छोटे छोटे टॉपिक को अगर 3-4 सोर्सेस से पढ़ोगे कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा। सो पे adequate attention to each and every part of the syllabus. Each and every small topic of syllabus is important from exam point of view. I can assure you that 90% of the question you will be getting from the class notes itself. But in optional paper, there is a good thing. If you are able to solve 90% of the question, so the good thing is that you have enough options in optional paper. And therefore, if you know even 80% of the syllabus, if you can solve even 80% of the question, you can easily cover all the questions. So they want you to write the answer of 5 questions. So since there are many options in optional paper, that is why you can easily cover those papers. You can easily write the answer of almost all the question. You have many options in optional paper. So each and every part of the syllabus becomes important. Now let us come on to paper 1, section A. Now from exam point of view, even though students, they keep on studying about Western political thought, but a very small topic which I find very relevant from exam point of view is political theory, meaning and approaches, then theories of state, theories of rights, theories of equality, theories of democracy and political ideologies. And you would be surprised to know, जितनी देर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपका होगा उतने में ये सारे टॉपिक 4 बार आप रिवाइज कर लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज ओनली। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज। स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, स्टूडेंट की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है वेस्टर्न थॉट पढ़ने में, और जो बची खुची एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है इंडियन थॉट पढ़ने में। तो बाय द टाइम स्टूडेंट रीचेस टू पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, ही और शी इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से। पता चलता है पेपर देने पहुंचे, वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है इन टॉपिक से, तुम जो पढ़ के गए हो वहां क्वेश्चन ही नहीं आया है। इसलिए हर पार्ट ऑफ द सिलेबस, हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। सो पेपर 1, सेक्शन ए, this section will also help you out greatly in general studies ethics paper and paper 1, where you have ideologies, political ideologies. So first major topic here is Western thought, Western political thought, जिसमें हमें पढ़ना है क्या क्या?
प्लेटो, एरिस्टोटल, मकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जेस मिल, कार्ल मार्क्स। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो दिन रात कार्ल मार्क्स पढ़ेगा, पता चलेगा जब पेपर देने गए तो क्वेश्चन ही नहीं आया। वो इतनी एनर्जी कार्ल मार्क्स पे लगा देते हैं कि पता चलता है कि जो टॉपिक उनको पढ़ के जाना था वो तो पढ़ ही नहीं पाए वो, और वो पूरी तैयारी में कार्ल मार्क्स ही पढ़ते रह गए। Now this topic is important. I'm not saying that this one is not important, but you should not be paying too much attention to these topics. So the source for these topics will remain a single source, that is class notes. Source topic wise मैं आपको class notes source बता देता हूं. Class notes, then PYQs, and then compilation, which you will be getting soon. जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको कंपाइलेशन मिलता चला जाएगा. These topics will also help you out in ethics paper. So these topics are also relevant. It is relevant for GS4, relevant for GS4 also. Then you have another topic, Indian political thought. Again, this topic is also relevant for GS4 also. It will cover one, Dharma Shastra, where we will discuss about Manu. Dharma Shastra, Arth Shastra, Buddhist tradition, Dharma Shastra, Arth Shastra, Buddhist tradition, then Gandhi, Ambedkar, M.N. Roy, Aurobindo Ghosh, then Sir Syed Ahmad Khan, Gandhi, Ambedkar, M.N. Roy, Aurobindo Ghosh, and Sir Syed Ahmad Khan. Here also you will have sources, class notes, PYQs, plus compilation. आप मेरे से ही पूछ सकते हैं, सर कोई ओरिजिनल टेक्स्ट बुक रेफर नहीं कर रहे हैं? नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक रेफर नहीं कर रहा हूं. अगर आपको पढ़ना ही है तो इग्नू एम में
You can refer to IGNOU MA for all these things. There is absolutely no point in referring to books like C.L. Vapor and Subrata Ramaswamy and Parker Nelson. There is absolutely no point. आपको अगर रेफर करना ही है तो सिंपल सा अप्रोच रखिए. एक चीज, केवल एक काम आप कर लीजिए. अगर आपको रेफर करना है तो आप केवल इस चीज को रेफर कीजिए, केवल इग्नू एमए को रेफर कीजिए अगर समय मिले तो. हालांकि इग्नू एमए भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो अगर आप इग्नू एमए रेफर भी करने जाएंगे तो आई टेल यू दैट थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. और बताऊंगा उत्कर्ष, जस्ट वेट बेटे. No, you need not attempt all the question, Vikram. You need to attempt only 5 questions. तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा. डोंट वरी, उसके लिए परेशान नहीं होना है. पहले केवल इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है. पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेबस पढ़ते समय केवल 1-2 बातों को ध्यान में रखो. पहली चीज, सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ो और सोर्सेस बहुत लिमिटेड रखो. उसके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास में आप अप्रोच कैसे करेंगे चीजों को. उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो उसके लिए एक यूनिवर्सल सोर्स विल बी इग्नू एमए. मैं आपको कोई फैंसी किताब नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अगर उन किताबों को पढ़ेंगे भी तो आपके दिमाग में चीजें नहीं रह पाएंगी. आप एक बार इग्नू एमए पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा. अच्छा, विक्रम इज डूइंग एमए फ्रॉम इग्नू, बहुत बढ़िया. तो इग्नू एमए का जो मटेरियल है उस मटेरियल को केवल आप रेफर कर लीजिए बस. अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो सब कुछ क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है. सो नाउ अदर टॉपिक्स आर पेपर 1 सेक्शन ए. पेपर 1 सेक्शन ए. अदर टॉपिक्स आर पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल. पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस. छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, हर टॉपिक करके जाना है पेपर में. पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस. पॉलिटिकल थियरी क्या है, क्या डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी हो गया है, क्या रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी हो गया है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या क्या है, मॉडर्न अप्रोचेस क्या क्या है. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज अप्रोचेस. तो पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Then you have theories of state. Theories of state. Again a very important topic. जो थियरीज ऑफ स्टेट में जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपके साथ डिस्कस करूंगा तो यहां पर, वहां पर जब मैं जॉन लॉक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, थॉमस हॉब्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, उन सारे स्कॉलर्स के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा, तो इन थियरी ऑफ स्टेट्स में आपको काफी सारी चीजें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से भी कवर हो जाएंगी. तो यहां पर जब थियरी ऑफ स्टेट में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपके साथ लिबरल थियरी ऑफ स्टेट डिस्कस करूंगा, नियो लिबरल थियरी ऑफ स्टेट डिस्कस करूंगा, प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट डिस्कस करूंगा, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ऑफ थियरी ऑफ स्टेट डिस्कस करूंगा, नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच डिस्कस करूंगा, नियो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ अप्रोच, आपका नियो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फेमिनिस्ट थियरी ऑफ अप्रोच आपके साथ डिस्कस करूंगा. काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी. तो यहाँ थियरीज ऑफ स्टेट में हमें क्या क्या पढ़ना है. थियरीज ऑफ अप्रोच में स्टेट में हमें पढ़ना है लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट,
सिलेबस में मार्क्सिस्ट वजह से मैं आपको न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच भी पढ़ाऊंगा, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट थियरीज ऑफ स्टेट। उसके बाद आपको पढ़ना है जस्टिस, जहां पर हम लोग रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस, हियर वी विल डिस्कस अबाउट जॉन रॉल्स। ये अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम prelims point of view, paper 4 point of view. Rawls's theory of justice, Nozick का theory of justice. Then we will also be discussing about communitarian critique, जो communitarian critique, communitarian critique. तो रॉल्स's थियरी ऑफ जस्टिस हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉजिक्स थियरी ऑफ जस्टिस हम लोग डिस्कस करेंगे, कम्युनिटेरियन क्रिटिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट थियरीज ऑन इक्वालिटी, थियरीज ऑफ राइट्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट इक्वालिटी, theories, rights, theories. Then we will discuss about democracy, various theories. Then we will discuss about ideologies, आइडियोलॉजीज में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। हालांकि आइडियोलॉजीज से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो ऑलरेडी, जैसे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है तो मार्क्सिज्म ऑलरेडी कार्ल मार्क्स में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूंगा। सो आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, socialism, fascism, Gandhism and feminism यहां एक और टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको पावर हेजेमनी, लेजिटिमेसी, पावर पढ़ना है आपको, हेजेमनी पढ़ना है, लेजिटिमेसी पढ़ना है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें यहां पर आपको पढ़नी है। सो दीज टॉपिक्स we will be discussing here. So equality, theories, rights, democracy, ideologies, etc. अब यहां पर क्या है कि पूरे के पूरे पेपर 1 सेक्शन ए में एक बार ध्यान में रखना है, किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हर टॉपिक को उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम में आप क्वेश्चन दे सके। क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुमने यहां बहुत ज्यादा पढ़ लिया है और तुमको बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल गया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में और यहां से टफ क्वेश्चन आया है, तो इसलिए सिलेबस के हर टॉपिक को अच्छे से करके जाओ। कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, दूसरा टॉपिक जहां बहुत मुश्किल आया है वो तुम बहुत ज्यादा पढ़ के गए हो और तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, वो दूसरी जगह से इजी टॉपिक आ गया है, उसको आसानी के साथ किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि आप लूज आउट कर जाएंगे। इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड यू विल लूज आउट अ लॉट, आप लूज आउट कर जाएंगे। इसलिए वो दिमाग से निकाल दो, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा सोर्सेस को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस के हर टॉपिक को अच्छे से कीजिए, समझ गए मेरी बात। सो
अब यहां पर तुम जब डिस्कस करोगे तो इक्वालिटी की थियरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आइडियोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आइडियोलॉजी भी यहां पर है, लेजिटिमेसी एंड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी भी ऐड कर लो। हर टॉपिक को आपको केवल अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक में जरूरत से ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है। आपको पूरे साल भर में ऑप्शनल पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा? बहुत ज्यादा समय अगर आपको ऑप्शनल पढ़ने के लिए मिलेगा तो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, 400 घंटे का समय है आपके पास ऑप्शनल पढ़ने के लिए, नॉट मोर देन 400 आवर्स। उससे ज्यादा तुम ऑप्शनल नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम बहुत सीरियस स्टूडेंट हो तो तुम 500 घंटे पढ़ लोगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, पूरे साल भर में 500 घंटे, अब तुमने प्लेटो पढ़ने में 50 घंटा लगा दिया तो तुम तो ऑलरेडी बैटल लूज कर चुके हो ना। स्टूडेंट कितनी बड़ी मूर्खता करता है, कई बार मैं बच्चों की जब मैं बातें सुनता हूं तो मैं अपना सर पकड़ लेता हूं। यार तुम्हारे पास पूरा पीएसआईआर पढ़ने के लिए 500 घंटे का समय है पूरे साल भर में, और तुमने एक टॉपिक पे 50 घंटा लगा दिया। तो तुम्हारे पास रिस्क रिवॉर्ड का सेंस ही नहीं है। तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना है, तुम एक टॉपिक पढ़ने पे 50 घंटा समय लगा रहे हो। एक प्लेटो और एक मार्क्स पढ़ने पे तुमने 50 घंटा समय लगा दिया, जबकि यू हैव ओनली 500 आवर्स टू स्टडी ऑप्शनल इन अ ईयर। एक साल में तुम्हारे पास केवल 500 घंटा है, और वो भी तब जब तुम अल्ट्रा सीरियस स्टूडेंट हो, जब तुम पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई बात ही नहीं करते हो, तुम पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं हो, then also you will have only 500 hours at your disposal। जो बच्चा इतना सीरियस नहीं है उसके पास तो 350 घंटे से ज्यादा समय नहीं होगा ऑप्शनल के पेपर में। क्या बात कर रहे हो? 350 घंटे में अगर तुमने 50 घंटा एक टॉपिक पढ़ने पे लगा दिया, तुम्हें लगता है कि तुम एग्जाम पास कर लोगे? तुमको 200 से ऊपर टॉपिक करने हैं और तुमने एक टॉपिक पढ़ने में 50 घंटे का समय लगा दिया। मतलब ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचता है। वो पता है कैसे सोचते हैं कि मैं, उसको किसी ने बता दिया होता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में तुमको ना मेहनत खूब करनी है, तो वो खूब करनी है मेहनत को क्या समझ लेता है कि एक ही टॉपिक पर मेरे को रिसर्च करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो कार्ल मार्क्स पढ़ेगा तो कार्ल मार्क्स पढ़ता ही चला जाएगा, रुकते ही नहीं है लोग। पता चलता है 10-10 दिन तक कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं वो। क्या हो जाएगा तुम्हारे कार्ल मार्क्स पढ़ने से? मतलब सोच करके देखो, अगर मान लिया तुमने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया 50 घंटे, क्या हो जाएगा? हो सकता है कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन भी ना आए, जब तक तुम पेपर दो तब तक क्वेश्चन ना आए, तो तुम तो बैटल लूज कर चुके हो भाई। मतलब एक बिल्कुल सही बात है जो हर्षित आपने कहा कि वन लाइफ इज नॉट इनफ टू स्टडी मार्क्स, और लोग 50 घंटे कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं वो। उनसे पूछो कि बेटा क्या कर रहे हो, तो आजकल मैं मार्क्स पढ़ रहा हूं। क्या करोगे मार्क्स पढ़ के? क्या करोगे तुम प्लेटो पढ़ के इतना ज्यादा? तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, तुम्हें कार्ल मार्क्स जैसा नहीं बनना है। लोग एक एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर को, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, टोटल पीएसआईआर के लिए तुम्हारे पास 400 घंटे 500 घंटे का समय है। वो भी मैं तब बोल रहा हूं जब तुम सबसे एकदम अल्ट्रा सीरियस स्टूडेंट हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बच्चे वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट में 200 घंटा लगा देते हैं। तुम्हें लगता है वो डिजर्व करता है एग्जाम पास करना? जिसको इस लेवल के बेसिक मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, क्या वो इतने बड़े एग्जाम को पास करना डिजर्व करता है? तुमको बेसिक मैनेजमेंट नहीं पता कि तुम्हारे पास यू हैव गॉट ओनली 400 आवर्स एट योर डिस्पोजल। ये उसी तरीके से है कि तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें कहा कि 10,000 रुपया तुमको मैं दे रहा हूं, तुम्हें महीना चलाना है। तुमने अगर पहले दिन 5,000 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब बेसिक मैनेजमेंट के लेसन में तुम्हारे फ्लॉ है। तुम्हें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को मैनेज करना नहीं आता है। 10,000 में से तुमने 5,000 रुपया एक दिन पार्टी करने में खर्च कर दिया, अब पूरा महीना तुम्हें 5,000 रुपए में चलाना है, यू विल स्ट्रगल। उसी तरीके से यहां पर है, यू विल लिटरली स्ट्रगल। तुम्हें पूरे पीएसआईआर को पढ़ने के लिए 400 घंटे का समय है तुम्हारे पास, 450-500 घंटे का समय है, वो भी तब जब तुम एकदम सीरियस स्टूडेंट हो। और तुमने 200 घंटा समय लगा दिया, 250 घंटा समय लगा दिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और आईपीटी पढ़ने में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ने में। बाकी के सिलेबस के लिए समय ही नहीं है तुम्हारे पास। तुमने पूरा समय तो बर्बाद कर दिया है। उसको मैं बर्बाद करना ही बोलूंगा, उसको मैं पढ़ना नहीं बोलूंगा। माइंड इट, जो तुमने पढ़ाई किया है और अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है तो मैं उसको टाइम बर्बाद करने में काउंट करता हूं, मैं उसको पढ़ाई में काउंट नहीं करता हूं। पढ़ाई में काउंट करने का मतलब इज वेरी सिंपल। पढ़ाई में काउंट करने का मतलब है दैट यू हैव गॉट इनफ आइडिया अबाउट द रिस्क एंड रिवॉर्ड।
तुम्हें ये पता है कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड इतना है। मेरे पास रिस्क कितना है तो मैं 20 घंटे का समय लगा रहा हूं, रिवॉर्ड कितना है तो यहां से एक क्वेश्चन मेरे को मिल सकता है। ये ऐसा बच्चा लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होगा। अगर मान लिया एक ऐसा बच्चा है जिसको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं है, वो एक ही टॉपिक पढ़ते रहते हैं लोग, उनसे पूछो पिछले 2 महीने से क्या कर रहे हो बेटे, तो सर मैंने पहले वेस्टर्न थॉट पढ़ा, फिर मैंने इंडियन थॉट पढ़ा, अभी मैं गावा खरीद करके लाया हूं और मैं पॉलिटिकल थियरी पढ़ रहा हूं। क्या करना है तुमको, एग्जाम पास करना है कि एकदम बहुत बड़ा रिसर्चर बनना है? तो इसलिए ये कभी नहीं करना है, हमें उतना जानना है जितने से हमारा एग्जाम हो जाए। इसलिए ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस माइंड इट इज इंपॉर्टेंट, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है लेजिटिमेसी पर तुमसे क्वेश्चन आ जाए, एक पूरा क्वेश्चन। अब तुम मुझे बताओ, तुमने एक वेस्टर्न थिंकर पढ़ने में लगाया है 50 घंटा, लेजिटिमेसी टॉपिक तुम पढ़ लोगे 1 घंटे में। 1 घंटे में तुम लेजिटिमेसी टॉपिक पढ़ भी लोगे, उससे अच्छा आंसर भी लिख दोगे। एफर्मेटिव एक्शन 1 घंटे में तुम पढ़ भी लोगे, अच्छा आंसर भी लिख दोगे। तो तुम्हारे लिए रिस्क और रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो क्या बेहतर है? हर टॉपिक को उतना पढ़ना है जितने से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। एवरेज लेवल पे पढ़ना है हर टॉपिक को, लेकिन पूरे सिलेबस को कवर करना है। पूरे सिलेबस को कवर करना इज अ चैलेंजिंग टास्क। सिलेबस के किसी एक पार्ट को तुम 2 महीने पढ़ रहे हो, उस पर मास्टरी कर ही लोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? अगर मान लिया तुमने किसी ने इस बार वेस्टर्न थॉट खूब पढ़ा होता और बाकी टॉपिक छोड़ दिया होता, 2 क्वेश्चन आया वेस्टर्न थॉट से, मजाल नहीं है कि वो एग्जाम निकाल दे। 2 क्वेश्चन पूरे वेस्टर्न थॉट से है, और वो भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हर बच्चे को पता है। हेडिंग से क्वेश्चन आया है, जो मैं क्लास में करवाता हूं ना, हेडिंग, लॉक्स थियरी ऑफ रेवोल्यूशन, हेडिंग से उठा के क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो आ, जब एलेग्री ऑफ केव करवाऊंगा तब मैं आपको करवाऊंगा, वहां पे प्लेटो से पूछा हुआ है क्वेश्चन। वो हेडिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो नेक्स्ट वन इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पेपर 1 सेक्शन बी। पेपर 1 सेक्शन बी। पेपर 1 सेक्शन बी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, दैट इज ट्रू। सेक्शन बी, दिस टॉपिक इज रिलेवेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू अ लॉट। इसलिए इस टॉपिक को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन जीएस और यहां पर अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जीएस और यहां पर अप्रोच क्या डिफरेंट होगा? जब तुम जीएस में आंसर लिखते हो ना ऐसे किसी भी टॉपिक का, तो आंसर लिखते समय तुम जीएस में डायरेक्टली इंडियन पॉलिटी का आंसर मान लिया तुमने लिखा, तो तुम यू कैन स्टार्ट योर आंसर डायरेक्टली विद आर्टिकल इटसेल्फ। But when you start your answer in PSIR, you will remain a lot theoretical as compared to general studies. पहला, जनरल स्टडीज के कंपैरिजन में तुम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल रहोगे। पहली बात तो तुम ये करोगे। दूसरी बात तुम्हें क्या करना है कि जब तुम पीएसआईआर ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहे होगे, तो सॉरी पीएसआईआर में यू विल रिमेन अ लॉट मोर थ्योरेटिकल एज कंपेयर टू जनरल स्टडीज। In general studies, you can afford to remain technical in your approach, but in PSIR, you need to remain a lot more theoretical. You will be using the name of a lot of scholars. You will be using a lot of quotes, जिससे तुम अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करोगे। वो मेजर डिफरेंस होगा बिटवीन योर आंसर ऑफ जनरल स्टडीज एंड आंसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में तुम्हारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं और ये जीएस में तुम्हें कैसे हेल्प करेगा? आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में जो पहला यहां पर तुम्हारा हेल्प होगा वो होगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में फर्स्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज of
India's freedom struggle. India's freedom struggle. From constitutionalism to mass satyagraha. From constitutionalism to मास सत्याग्रह. बेसिकली जो गांधीयन फेज की यहां बात हो रही है, जो मॉडरेट फेज से लेकर के और गांधीयन फेज तक की बात हो रही है. तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में. दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेवेंट फ्रॉम मॉडर्न इंडिया. वहां पर भी तुम बहुत डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे. तो यहाँ पीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा. एग्जैक्टली अब मैं पूरा मॉडर्न इंडिया तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में, लेकिन जहां तक पीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें मैं क्लास में आपको करवा दूंगा. ठीक है. देन पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, another very interesting topic. Perspectives on Indian national movement. Perspectives on Indian national movement में हम लोग we will discuss about colonial perspective, we will discuss about liberal perspective, we will discuss about Marxist perspective, socialist perspective, radical humanist perspective, and Dalit perspective. So we will discuss about liberal perspective, colonial perspective, Marxist perspective, socialist perspective, liberal perspective, Marxist perspective, socialist perspective, then Dalit perspective और रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव. ये एम एन रॉय में मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा. रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. उसके बाद जो भी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में टॉपिक है, दोज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दोज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू सोशल इश्यूज जो आप पढ़ते हैं, उस सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. सो टॉपिक्स लाइक मैंने यहां पे लिख करके रखा हुआ है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट पर क्या था, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर पर क्या था, उन सारी चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल. देन salient features of Indian Constitution, another topic. Salient features of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सिलेबस डिटेल में जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा. एक एक टॉपिक हम लोग क्लास में करेंगे, डोंट वरी, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस क्या क्या होंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक में. आपके पास सोर्सेस आपके अपने क्लास नोट्स जो आपको मिलेंगे, जो मैं क्लास में करवाऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, प्लस कंपाइलेशन जो आपको टॉपिक ऑन टॉपिक मिलेगा. उसके अलावा इग्नू एमए में भी ये सारे मटेरियल्स बड़े अच्छे ढंग से दिया हुआ है. इग्नू एमए ने भी ठीक ठाक सारी चीजों को कवर किया हुआ है. देन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ
union government, then principal organs of state government. Then constitutional bodies and statutory bodies, जिसमें a lot of constitutional bodies and statutory bodies are there. Duration of class will be of 2 hours, and later on we will also increase the duration of the class to 2.5 hours and maybe sometimes to even 3 hours. तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा. Then grassroots democracy, 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. Grassroots democracy. Then statutory bodies, constitutional and statutory commissions. ये सब एक्सक्लूसिवली इंडियन पॉलिटी के टॉपिक है. अगेन इन सारे टॉपिक के लिए आपके पास सोर्सेस, क्लास नोट्स, जितना एग्जॉस्टिव मैनर में हो सकता है क्लास नोट्स में सारी चीजें कवर्ड होंगी. क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर प्लस कंपाइलेशन. अगर ज्यादा किसी की इच्छा हो पढ़ाई करने की तो वो इग्नू एम में देख ले, और जो जीएस के लिए तुम इंडियन पॉलिटी का मटेरियल देखोगे वो भी देख लोगे तो काम चल जाएगा. बाकी क्लास में जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो सारी बातें मैं कवर करवा दूंगा. क्लास नोट्स में बहुत ही एग्जॉस्टिवली मैं आपको करवाऊंगा. आपके जो कंपाइलेशंस होंगे वो भी बहुत एग्जॉस्टिव होंगे, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई टेक योर करियर एज सीरियसली एज यू डू. तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा कि किसी एक टॉपिक में मैं आपको ना पढ़ाऊं और यूं ही निकाल दूं. ऐसा मैं कभी नहीं करता और अपने किसी भी बैच में नहीं करता. Each and every topic of the syllabus will be given same emphasis, will be given utmost importance. कोई भी टॉपिक मैं ऐसा नहीं करूंगा कि उस टॉपिक को, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी और कमीशंस है, यहां से हर साल 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. रिलेटिवली आसान टॉपिक है. मैं अगर चाहूं तो इस टॉपिक का केवल नोट्स देकर के भी आपको ये बोल सकता हूं कि आप इस टॉपिक को खुद से कर लीजिएगा. इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? तो इसमें टॉपिक है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एटसेट्रा. अब ये टॉपिक अगर मैं चाहूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ठीक है आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं. मैं क्लास में इस टॉपिक को भी उतने ही डिटेल में करवाता हूं, बिकॉज एवरी ईयर दे आस्क 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो सिलेबस के किसी भी टॉपिक को छोड़ना कोई समझदारी नहीं है आज के डेट में, बिकॉज द ट्रेंड ऑफ एग्जाम हैज गॉट सिग्निफिकेंटली चेंज. पूरा चेंज हो चुका है एग्जाम का ट्रेंड. अगर आज मैं पुराने स्टाइल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो वो बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा, वो हम में से किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स. समझ गए मेरी बात? देन हाँ, किसी बच्चे का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं. सिलेबस को आगे मैं डिकोड करता हुआ आपके साथ डिस्कस करता हूं. यहां तक किसी बच्चे के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इनफैक्ट हर्ष, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, जैसे जीएस में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो पीएसआईआर में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछते हैं, वो फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे आर्टिकल 32 सीधे उन्होंने 4 बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है. एक बारी पूछा आर्टिकल 32, एक बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक बारी पूछा हुआ है पार्ट 3 ऑफ द रोल ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एकदम फेयरली डायरेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फेयरली डायरेक्ट. Yes, these topics are there. छोले भटूरे नाम बड़ा अच्छा आपने रखा है. These topics are there in general studies also. किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. चलिए,
सो नेक्स्ट वन इज, एक और टॉपिक है इसमें जीएस से रिलेटेड, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एंड चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये आपको जीएस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये जीएस के भी सिलेबस का पार्ट है। चलिए यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ो। हाँ वो मैं बताऊंगा हर्षित, हर्षित उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो नो नो, डू नॉट स्किप जनरल स्टडीज क्लासेस अक्षय, ये करने की जरूरत नहीं बेटे। रीजन क्या है कि जैसे मैं आपके साथ पार्लियामेंट पीएसआईआर में डिस्कस करूंगा और जो पार्लियामेंट में जीएस में पढ़ाता हूं, दोनों में देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। जो मैं जीएस के लिए पीएसआईआर पढ़ाता हूं तो उसमें अ लॉट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आर आल्सो कवर्ड। फॉर एग्जांपल, मैं उसमें बच्चों को पढ़ाता हूं प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, प्रिविलेज मोशन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पीएसआईआर में नहीं करवाऊंगा, समझ गए मेरी बात? These topics will not be covered in PSIR. PSIR में when we will discuss about parliament topic, so we will remain very theoretical in our approach. हमारा अप्रोच बहुत ज्यादा थियोरेटिकल होगा, तो इसलिए आप आईआर में जो पढ़ाया जाता है वो आईआर स्किप कर सकते हो। आईआर में डिटेल में करवाऊंगा क्लास में, डोंट वरी, लेकिन वो आप डिटेल में स्किप नहीं कर सकते हो। जीएस पॉलिटी को यहां मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि जीएस पॉलिटी में अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू स्टडी इन जनरल स्टडीज पॉलिटी आर आल्सो रिलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हियर आवर अप्रोच विल रिमेन ओनली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. So those informations that can be asked in prelims paper will not be covered here. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो प्रीलिम्स में पूछी जाएगी वो यहाँ कवर नहीं होगा, यहां मैं वही कवर करूंगा जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो इसलिए जीएस को रिप्लेस करने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, आईआर में यू कैन रिप्लेस जीएस, आईआर में जितना जीएस तुम्हें पढ़ाया जाएगा उससे ज्यादा डिटेल में तो हम लोग यहां पढ़ेंगे, तो इसलिए आईआर की तो चिंता ही मत करो, कोई टेंशन लेने की आईआर में जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इंडियन पॉलिटी में मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे आता है एक और टॉपिक है उसके बाद, दैट प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर एटसेट्रा। सो planning and the name of the topic is planning and economic development and economic development. Here we will discuss about Nehruvian and Gandhian perspective on economy. Then we will discuss about economic liberalization also, liberalization, privatization and globalization. We will discuss about public sector also. So planning and economic development. Then caste, religion and ethnicity in Indian politics. Caste, religion and ethnicity in Indian politics. Caste, religion and ethnicity in Indian politics. Pretty long topic. ये टॉपिक एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स. देन सोशल मूवमेंट, अनदर प्रिटी लॉन्ग टॉपिक. सोशल मूवमेंट, अब देखो most of the students they do not study about these topics. Most of the students do not study about social movement, जिसमें women movement है, civil rights movement है, grassroots movement है, environmental movement है. They do not study about this movement. They do not study about caste, religion and ethnicity in Indian politics. Most of the students they skip topics like party system. इन टॉपिक्स को स्किप करके लोग आगे बढ़ जाते हैं.
अगर तुम पुराने सालों का पेपर देखोगे, यू विल रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली. पूरे अगर तुम लास्ट 10 years का पेपर देखोगे, एनालाइज करोगे, सो यू विल रियलाइज that most of the questions they have not asked from Indian polity topic. Rather, most of the questions they have asked from these topics, because they know that in each and every coaching institute they discuss all those things in detail. But very few people cover these topics in classroom. These topics have become so relevant and so important. And these topics are relatively very easy topic. लेकिन होता क्या है कि इन टॉपिक पर किसी एक जगह मटेरियल अवेलेबल नहीं है. And that is why students, they try to skip these topics. These topics should not be skipped, remember. So party system, like national and regional political parties, ideological and social basis, national parties, regional parties, ideological and social basis of political parties, social basis of political parties, पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजिकल बेस के बारे में यहां बातें होती है, सोशल बेस के बारे में बात होती है, रीजनल पार्टीज के बारे में बातें होती है, नेशनल पार्टीज के बारे में बात होती है. देन प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेंड इन इलेक्टोरल बिहेवियर, प्रेशर ग्रुप्स, change in electoral behavior, electoral behavior, socio-economic profile of legislators, economic profile of legislators. Each and every topic is important. They can ask question from anywhere. सबसे मजे की बात यह है, they can ask question from anywhere and they have been asking question from anywhere. वो इसमें से कोई भी एक छोटा सा यूनिट उठाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अब होता क्या है कि स्टूडेंट ने मान लिया वोटिंग बिहेवियर नहीं पढ़ा है, स्टूडेंट ने सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर नहीं पढ़ा है, तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा पेपर में. तुमने मान लिया टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा पढ़ी है और तुमने ऐसे टॉपिक्स को छोड़ दिया है. ऐसे टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स. इनफैक्ट यू विल फाइंड दीज टॉपिक्स वेरी इंटरेस्टिंग. इन टॉपिक्स में बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको. So that is why I said that each and every part of the syllabus is very important. Now let us move on to, and here what sources will you be referring to? The sources would be sources, class notes, plus PYQs, plus compilation, plus if you have time, IGNOU MA. That's it. Do not go and purchase Vidyut Chakravarti's book. Do not go and purchase Faria's book. There is absolutely no point. Faria's book, it consists of 1600 pages. Do you think that do you have time to read 1600 pages? Because the question which they are asking, you can easily those cover from any good source. So there is absolutely no point in going through 1600 pages. 1600 पेज की किताब है फारिया की. मेरे पास जो किताब है वो खुद ही 1200 पेज की किताब है. 4 साल पुरानी किताब है मेरी. 1200-1300 पेज की किताब है वो इतनी बड़ी किताब है. हाथ में पकड़ में नहीं आएगी वो किताब. स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट वो किताब खरीद लेते हैं. उसमें एक एक चैप्टर फारिया ने पता है कितने पेजेस में लिखा है? 150 पेज में तो एक एक चैप्टर लिखा है फारिया ने. फेडरलिज्म जैसे टॉपिक्स को क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकली फिजिबल है कि आप पढ़ ले जाएंगे 150 टॉपिक? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू. नोबडी कैन डू सो. अब होता क्या है कि किसी टॉपर ने कहा कि नहीं मैंने पढ़ा था फारिया. अब बच्चा सोचता है कि उसने पढ़ा था तो मैं भी खरीद लेता हूं. अरे क्या पता उसने उस किताब से एक चैप्टर पढ़ा हो, उसने उस किताब को केवल रेफरेंस के तौर पे यूज किया हो, कुछ टॉपिक्स उसने उस किताब से पढ़े हो.
तुमने उसकी बात मान ली, अब तुम इस किताब को कवर टू कवर पढ़ रहे हो, 1600 पेज की किताब पढ़ने में नहीं भी समय अगर तुम्हें लगेगा तो मैं गारंटी देकर बोल सकता हूं, इतने छोटे छोटे में लिखा हुआ है उसमें, तुम्हें मिनिमम से मिनिमम समय लगेगा 40 डेज 45 डेज केवल रीड आउट करने में। उस किताब से तुम क्या निकालोगे अपने काम की चीज मुझे नहीं पता, तुम केवल ओनली व्हेन यू विल रीड आउट इट विल नॉट टेक लेस देन 45 डेज। डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? दैट इज नॉट प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन के नाम पे धोखा है। तो इसीलिए इसके लिए मैं अननेसेसरली ऐसे किसी भी बुक आपको रेफर नहीं करूंगा कि जिसमें आप परेशान हो जाए। आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी चीज आप एंजॉय करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, परेशान होकर के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीएसआईआर कवर करता है पूरे आईआर को, बिल्कुल सही बात है। हम्म। देन नाउ लेट अस मूव ऑन टू पेपर 2। आज हम लोग सिलेबस को एक बार डिकोड कर लेते हैं जिससे आपके लिए भी आसानी हो। सबसे पहला काम करना है, सिलेबस डाउनलोड करके उसको रखिए बगल में और उसको पढ़ते रहिए। एक एक टॉपिक क्लास में मैं करवाऊंगा, तो इसलिए आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर 2, सेक्शन ए। पेपर 2 में ब्रॉडली अगर तुम देखोगे ना तो तीन चार चीजें। पहली चीज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव में देयर इज ओनली वन सोर्स जहां से मैंने पूरा नोट्स बना करके आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, इग्नू एमए। इग्नू एमए के अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देयर इज नो सोर्स। Every year you will find not less than 3 to 4 topics from comparative politics itself. Every year they keep on asking at least 3 to 4 questions from comparative politics itself. अब दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जनरली स्किप करता है। आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक को स्किप करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट स्किप टॉपिक्स लाइक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। So first one is comparative politics. Then you have theories of international relations. Theories of IR. Then key concepts in international relations. Then changing international economic order. कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। चेंजिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, जिसमें कल कोल्ड वॉर टॉपिक से मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को। तो जानबूझ करके एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे पिक करना था पढ़ाने के लिए, क्योंकि लेक्चर हमेशा जब मैं शुरू करता हूं तो कोशिश रहती है कि कुछ दिनों तक आपका इंटरेस्ट बिल्ड किया जाए। वेस्टर्न थॉट से भी मैं स्टार्ट कर सकता था, जनरली मैं वेस्टर्न थॉट से ही स्टार्ट करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये टॉपिक ज्यादा बेहतर रहेगा। दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। तो चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, देन evolution of international economic system from Bretton Woods to WTO। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WTO के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में।
फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड related agencies. यूनाइटेड नेशंस एंड रिलेटेड एजेंसीज। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल यूपीएससी का बड़ा फेवरेट एरिया हो गया है। ये यहां से वो हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसको बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं पेपर में। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? इसमें टॉपिक है एनवायरमेंट, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, न्यूक्लियर proliferation, and then feminism. ये टॉपिक हर बच्चा छोड़ के जाता है पेपर में। ये लास्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न वाला कि जेंडर जस्टिस, फेमिनिज्म रादर, फेमिनिज्म की जगह लिख लीजिए जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस, ये हर बच्चा इस टॉपिक को छोड़ के जाता है। अब तुम सोचो, तुमने मान लिया आईआर की थियोरी पढ़ने में ही सारी एनर्जी खत्म कर दी, अल्टीमेटली यहां से हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आए, but most of the student they keep on reading only theories of international relations as if nothing is going to ask in paper except theories of IR in paper 2. That is not true. Each and every part of the syllabus is important. Each and every topic is important. Gender justice, nuclear proliferation, terrorism, human rights, democracy, environment, everything is important. ऐसा नहीं है कि तुम केवल रियलिज्म पढ़ोगे और आइडियलिज्म पढ़ोगे तो उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसलिए पूरे सिलेबस के एक एक टॉपिक को करना है हमें। ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक को दिन रात तुम पढ़ रहे हो, रियलिज्म पर ही रिसर्च कर दिया है तुमने, पिछले 10 दिन से रियलिज्म ही तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग रियलिज्म सो मच? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सो मच? देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट। दीज टॉपिक्स आर इक्वली रिलेवेंट। अगर तुम पुराने सालों का पेपर देखोगे तो तुम ये बात रियलाइज करोगे कि इन टॉपिक से हर साल 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल। समझ रहे हो मेरी बात? यस, रीजनलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रीजनल, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान, एपिक, सार्क एंड नाफ्टा, जिसको अब रिप्लेस कर दिया है नाफ्टा को। अब इस बार क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाफ्टा को यूएस, मेक्सिको और कनाडा ने क्यों रिप्लेस किया है? पुराने नाफ्टा में, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया में क्या समस्याएं थी जिसको अभी यूएस, कनाडा और मेक्सिको अग्रीमेंट ने रिप्लेस कर दिया है? तो जो सिलेबस में नाफ्टा दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन पूछा है। हाँ, यहां पर मैं आपको करवाऊंगा काफी सारी चीजें। ये हमारे सिलेबस में एससीओ नहीं है, बट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बिम्स्टेक आल्सो, नॉट ओनली एससीओ, वी विल डिस्कस अबाउट बिम्स्टेक आल्सो। सो दैट्स अबाउट पार्ट 2 सेक्शन है। पूरे सिलेबस का सबसे लंबा पोर्शन यही है, पार्ट 2 सेक्शन है ये। इट्स लेंदी, बड़ा है थोड़ा, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। एक सोर्स उठाओ, उसी को बार बार पढ़ो। सिलेबस क्लास में यहां पर आपके पास सोर्सेस कौन कौन से होंगे? पहला सोर्स होगा आपके पास सोर्सेस, क्लास नोट्स, दूसरा सोर्स कौन सा होगा आपके पास? पहला सोर्स होगा क्लास नोट्स, दूसरा सोर्स होगा व्हाट यू कॉल पीवाईक्यूज,
तीसरा सोर्स कौन सा होगा? तो तीसरा सोर्स होगा कंपाइलेशन। फोर्थ सोर्स कौन सा होगा? कंपाइलेशन। फोर्थ सोर्स होगा इग्नू एमए इफ यू वांट। इग्नू एमए में सब चीजें लगभग कवर किया हुआ है। तो किसी एक जगह पे अगर आपको कुछ चाहिए रेफरेंस मटेरियल के तौर पर, टाइम मिले तब, ये गलती नहीं करनी है कि क्लास से भी पढ़ लेना है फिर इग्नू एमए से जाकर के उसी टाइम में पढ़ना है, फिर क्या होगा कि आप क्लास में पीछे रह जाएंगे। और पेपर 2 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन बी इट कवर्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पेपर 2 सेक्शन बी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसमें आपका सोर्स क्या होगा? वन, सोर्सेस। फर्स्ट, क्लास नोट्स। सेकंड, PYQs। थर्ड, कंपाइलेशन। एंड देन ब्लॉग लाइक gatewayhouse.in। कोई भी एक ब्लॉग फॉलो कर लेना। मुझे gatewayhouse.in और ORF बहुत अच्छा लगता है। पहले जो अपने PSIR का ग्रुप है ना, ऑफिशियल ग्रुप, उस ऑफिशियल ग्रुप पे मैं ORF के आर्टिकल्स और gatewayhouse.in के आर्टिकल डेली खरीद के, डेली सॉरी पढ़ के डाल दिया करता था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमारे PSIR के बैच को, जो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है PW का, उसको ORF वालों ने शिकायत कर दी कि ये हमारे मटेरियल को शेयर करते हैं ग्रुप पर। तो उन्होंने टेलीग्राम के पूरे चैनल को ही मेरे वो सस्पेंड करवा दिया। तो फिर मैंने बात किया, तो ORF वालों से फिर बात की हुई इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा सारा का सारा मटेरियल डिलीट करके और फिर अपने चैनल को स्टार्ट कर लीजिए। मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा कि मैंने तो इसलिए बच्चों के साथ शेयर किया था क्योंकि आपने उसमें शेयर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। वो तो ओपन सोर्स है, ORF की वेबसाइट से जाके पढ़ लो, gatewayhouse.in की वेबसाइट से जाके पढ़ लो। ऐसा तो तुमने किया नहीं है कि तुमने उसको प्राइवेट किया हुआ है, तुमने तो उसको ओपन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे मटेरियल को किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी चैनल पे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद से मैंने शेयर करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि अननेसेसरली फालतू में प्रॉब्लम कौन ले, पता चले कि चैनल को ही सस्पेंड कर दिया। तो मैं क्या करता था कि मैं रेगुलर बेसिस पे, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल पढ़ता था और वो क्या कहते हैं, यूट्यूब से वीडियोस देखता था और मैं वीडियोस उस ग्रुप में पोस्ट करता था। लेकिन ORF के उस इंसिडेंट के बाद से मैंने ये काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभी मैं फिर कोशिश ये करूंगा कि मैं इस पर ORF का मटेरियल अगर नहीं होगा तो gatewayhouse.in या IDSA का मटेरियल मैं कभी कभी शेयर कर दिया करूंगा। बाकी सोर्सेस मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों सोर्सेस ओपन सोर्स है। डेली यहां से जाके एक आर्टिकल डेली पढ़ो, एक, नॉट मोर देन वन। रीड वन आर्टिकल अ डे। ये उसी तरीके से है कि तुम अगर डेली एक्सरसाइज करते हो तो तुम हेल्दी हो जाओगे, लेकिन एक ही दिन अगर 5 घंटे एक्सरसाइज करते हो तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो उसी तरीके से यू नीड टू रीड वन आर्टिकल अ डे रादर देन कि तुम मल्टीपल आर्टिकल्स देखने की कोशिश करो। मल्टीपल आर्टिकल आपको देखने की कोशिश नहीं करनी है। अब हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? यू विल अटेंड क्लासेस। क्लास आपने अटेंड किया, you go back to your study table, you read class notes again, read class notes again, उसी सेम टॉपिक को नेक्स्ट डे बिफोर कमिंग टू द क्लास रीड कंपाइलेशन।
सेम क्लास में रीड कंपाइलेशन नेक्स्ट डे, एंड देन ऑन वीकली बेसिस जब भी संडे मिले या हॉलीडे मिले, रिवाइज द होल थिंग, जो भी आपने वीक में पढ़ा है। उसके बाद मंथली बेसिस, उस पूरे मंथ में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। केवल पढ़ते नहीं रहना है, रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप रियलाइज करेंगे दैट आफ्टर एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन योर टाइम विल कंसिडरेबली रिड्यूस। जब तुम 2 घंटे का लेक्चर अटेंड करके पहली बारी क्लास नोट्स पढ़ोगे, इट विल टेक ओनली 45 मिनट्स। नेक्स्ट डे जब तुम कंपाइलेशन पढ़ोगे, इट विल टेक हार्डली 30 to 35 मिनट्स। जब तुम संडे को या हॉलीडे को रिवाइज करोगे, सो इट विल टेक हार्डली 20 to 25 मिनट्स। मंथली रिवीजन तुम करोगे, इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स। मतलब पूरा का पूरा एक लेक्चर 15 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है। पूरे एक लेक्चर को अगर तुमने रिवीजन का ये साइकिल कर दिया, तो रिवीजन का बेसिकली मैं 4 साइकिल की बात कर रहा हूं, ए बी सी एंड डी। अब अगर कोई बच्चा इतने मेटिकुलसली तैयारी करता है तो उसको किसी और सोर्स को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा मल्टीपल सोर्सेस रेफर कर रहा है, इसका मतलब है कि उस बच्चे ने इन सोर्सेस को ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ा है और फिर वो मल्टीपल सोर्सेस को रेफर कर रहा है। डोंट डू दैट। अगर आप मल्टीपल सोर्सेस को रेफर करेंगे, दैट विल बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर यू। इसलिए नहीं करना है आपको, ये मत करो, नहीं करो। You read limited sources and you revise it again and again. समझ गए मेरी बात? बिल्कुल 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 आदर्श, यहां से सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट वरी। आपके बीए में सबका सिलेबस कवर हो जाएगा, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 4 रिवीजन करोगे तो टाइम ही नहीं बचना है तुम्हारे पास। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो इतने सारे सोर्सेस पढ़ने लगते हैं कि वो रिवाइज नहीं करते हैं, वो केवल रीड करते हैं। केवल ये नहीं करना है, केवल रीड नहीं करना है, आपने रेगुलर बेसिस पे चीजों को रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। सारे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। बिल्कुल 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 आदित्य, लिमिटेड सोर्स बेटे विद डायनेमिक अप्रोच, बिल्कुल। बीए में सबका सिलेबस आदर्श कवर हो जाएगा, यहां से एकदम कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा। हाँ, फारिया अगर खरीदे होते तो बहुत परेशान हो जाते हर्षित, क्योंकि वो 1500-1600 पेज की बुक ना, मतलब पूरी तैयारी खराब कर देता। वो समय ही नहीं होता आपके पास पढ़ने का। वो मैं बताऊंगा, वो मैं आपको बताता रहूंगा क्लास में, टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा राइटिंग कैसे इंप्रूव करना है। डोंट वरी, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना रहने दिया जाए। बिल्कुल अनन्या, यही तरीका ही है बेटे, यही तरीका ही है। तरीका आपको एग्जाम पास करने से मतलब है ना। बहुत बड़ा नॉलेजेबल और विद्वान बन के क्या ही फायदा हो जाएगा। यहां एग्जाम पास करने में तुमको जो एकेडमिक्स वाले लोग हैं तो भी विद्वान नहीं मानेंगे, तुम कितना भी टॉप कर जाओ सिविल सर्विसेज का एग्जाम। तो यहां विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। सिंपल सा अप्रोच रखो, केवल एग्जाम पास करने के लिए जो कुछ पढ़ना है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बात खत्म हो गई। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एकदम हाथ खड़े कर दो, नहीं पढ़ूंगा, उसी चीज को 4 बार रिवाइज करूंगा। अब 4 बार रिवाइज करने में क्या किसी बच्चे के पास समय बचेगा? सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। तुम्हारे घर में किसी बच्चे का बर्थडे होगा तो भी मैं गारंटी देकर कह सकता हूं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप मतलब आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, आप बर्थडे और शादी तक अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर आपको 4 रिवीजन करना है तो।
उसके बाद समय मिलता है तो कुछ और पढ़ लो, खत्म हो गई बात। अच्छा, छोले भटूरे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको पढ़ाया होगा संकल्प, वो लास्ट ईयर 2023 में पढ़ाया था क्या, कि या इसी बार? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है अभिनव, जरूरत नहीं उसकी। क्लास में जो मैं करवाऊंगा, जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, उसको जॉट डाउन कीजिए। सेपरेटली नोट्स नहीं बनाना बेटे, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम अपने से सेपरेटली नोट्स बनाओगे तो रिवाइज कर पाओगे क्या, क्वेश्चन कर पाओगे क्या? तो इसलिए ऐसे नहीं करना है, अपने समय को फालतू में नहीं बर्बाद करना है। चलो बच्चों, आज के लिए इतने रहने दिया जाए। बिल्कुल 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 विक्रम, बिल्कुल हेल्प मिलेगी। कोई भी एक फॉलो कर लीजिए, गेटवे और ओआरएफ दोनों में से डेली एक आर्टिकल पढ़ना। जीत, एक से ज्यादा मत पढ़ना। ये उसी तरीके से है कि डेली अगर 1 घंटे एक्सरसाइज करोगे तो हेल्दी रहोगे, 5 घंटे एक्सरसाइज करोगे बीमार हो जाओगे। एक 1 आर्टिकल अ डे, खत्म हो गया। रिलेवेंट लगता है नहीं लगता है वो इमटेरियल है, केवल पढ़ लो, नोट्स वोट्स मत बनाना, केवल पढ़ते चले जाओ डेली। बोलोगे याद रहेगा क्या? साल के एंड में खूब याद रहता है, सब याद रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोले भटूरे समझ गया मैं। अभी के लिए नहीं, नहीं अभी बीए के लिए छोड़ दो, बीए का तो सब यहीं से कवर हो जाएगा। बीए का तो सब क्लास से कवर हो जाएगा, डोंट वरी, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, सब कुछ यहां से कवर हो जाएगा।